سردیاں اپنے عروج پر تھی۔ سردیوں کی وجہ سے تاریکی جلد ہی ہر طرف چھانے لگتی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے، مگر دیکھنے پر یوں لگ رہا تھا گویا آدھی رات ہو چکی ہو۔ مجھے گھر سے ہر صورت 9 بجے نکلنا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی امی جلدی سو جائیں تاکہ میں بآسانی گھر سے نکل کر اپنی مطلوبہ منزل پر جا سکوں۔ امی کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے ہوتا کچھ یوں تھا کہ وہ کبھی جلدی سو جاتی تھیں تو کبھی دیر سے سوتی تھیں۔ نیند بھی ان کی کافی گہری ہوتی تھی کہ اگر ایک بار سو جاتی تھیں تو آسانی سے بنا نیند مکمل کیے نہیں اٹھتی تھیں۔ آج میں چاہتی تھی وہ 9 بجے تک سو جائیں، لیکن ان کے انداز دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جلدی سوئیں گی۔ اگر وہ جلدی نہ سوتی تو میں اپنا کام سر انجام نہ دے سکتی۔ جب گھڑی 9:30 بجانے لگی تو میں نے امی سے پوچھا، آپ نے کب سونا ہے؟ یہ سن کر وہ بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے میں سلائی کروں گی، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر سوں گی۔ ان کے ارادے جان کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ انہیں سوتے وقت رات کے 2-3 بج جائیں گے۔ چونکہ سردیاں تھیں اس لیے فجر کی اذان دیر سے ہوتی تھی اور امی 6 بجے نماز ادا کرتی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ کس طرح امی کو سلاؤں۔ آج میرا گھر سے جانا بہت ضروری تھا، اگر میں امی کو بتا کر جاتی تو وہ اول تو مجھے گھر سے جانے کی اجازت ہی نہ دیتی، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں ان کو بتا دیتی کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہو جاتی۔ سو ان کو سلانے کا میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میں چوری چھپے اپنے پرس کی جیب سے نیند کی دوا نکال کر لے گئی اور 2 کپ چائے بنا لی۔ چونکہ میں نے ساری رات جاگنا تھا اس لیے چائے پینا بہت ضروری تھا۔ چائے میں کیفین ہوتی ہے جو نیند کو دور بھگا کر انرجی پیدا کرتی ہے۔ خیر امی کے کپ کے اندر میں نے نیند کی دوا ملا دی تھی۔ چائے لے کر میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بڑا خوش ہوئے، کہنے لگی، میرب مجھے واقعی چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی، تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے چائے بنا کر دی۔ امی میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، میں فقط مسکرا دی۔ خیر انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو میں بھی تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے کر چائے اپنے اندر انڈیلنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں جا کر مجھے تھوڑی سی بھی نیند آئے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب امی نے چائے ختم کر لی۔ میں نے وقت دیکھا تو 10 بجنے والے تھے۔ میں امی کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں نیند واضح ہو رہی تھی، صرف تھوڑی سی انہوں نے سلائی کی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کہا وہ سونا چاہتی ہیں، اب انہیں نیند آ گئی ہے۔ یوں انہوں نے کمرے کی لائٹ بجھا دی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب میں نے تسلی کر لی کہ انہیں گہری نیند آ گئی ہے تو میں نے انہیں 2-3 بار آواز بھی دی، مگر ان کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی، وہ خراٹے لے کر سو رہی تھی۔ سو میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں آئی، الماری میں سے اپنا نیا ٹاپ اور جینز نکال کر پہنا، بال کھلے چھوڑے اور میک اپ کیا۔ اس کے بعد عبایا پہنا اور نقاب کیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ یوں میں اپنے ہینڈ بیگ میں اپنا فون، گھر کی چابی اور پیسے وغیرہ رکھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ آج میں پہلی مرتبہ وہاں جا رہی تھی، اس لیے تھوڑی نروس بھی تھی۔ راستے میں نے مشی کو اس کے گھر سے پک کیا اور ہم دونوں ایک رکشے میں بیٹھ کر نکل پڑی۔ جس جگہ ہمیں جانا تھا ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہی اترے تھے۔ اس کے بعد رکشے والے کو کرایہ دے کر ہم آگے نکل پڑے۔ مشی بھی اس وقت نقاب اور عبایا میں تھی۔ ہم دونوں گھر والوں سے چوری یہاں آئی تھی۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ہم ایک کلب میں داخل ہوئی جس کے اندر سے آتی روشنیوں نے ہمارا استقبال کیا۔ کلب سے باہر تو گہری تاریکی کا راز تھا، مگر کلب کے اندر آ کر صبح کا سما لگتا تھا۔ کلب کے اندر دن چھایا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی گانوں کے فکروں نے ہمارے کانوں میں رس گھولا۔ دھیما دھیما میوزک ماحول کو پرفسوں بنا رہا تھا۔ رنگ برنگی بتیوں سے ماحول میں الگ ہی رنگ گھل رہے تھے۔ یہاں آتے ہی ہم واش روم چلی گئیں جہاں بڑے بڑے آئینے نصب تھے۔ ہم نے یہاں عبایا اور نقاب اتارا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ ہماری چند دوستیں پہلے ہی یہاں تھی، اس کے علاوہ ہمارے بوائے فرینڈز بھی یہاں آ چکے تھے۔ یہاں کا ماحول مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں بڑا خوش ہوئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رات میری خوشی کی آخری رات تھی اور اب جو ہونے والا تھا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھ پر وبال ڈالنے والا تھا۔ اپنا میک اپ اور بال درست کرنے کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے۔ سامنے ہی مجھے اپنا بوائے فرینڈ افنان آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، اس نے آج مجھے یہاں بلایا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، ایک دوسرے کے گرد بازو حائل کر کے ڈانس کے اسٹیپ لینا شروع کیے۔ وہاں سب لڑکے لڑکیاں آپس میں دوست تھے اور اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ ہمارے پیچھے کوئی انگلش سانگ لگا ہوا تھا۔ ڈانس کے بعد ہم دونوں باتیں کرنے چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک ویٹر آیا جس نے ہمیں کولڈ ڈرنک سرو کی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا، اس لیے میں تھوڑا گھبرا رہی تھی، مگر پھر مجھے یہاں مزہ آنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی مرتبہ بھی میں یہاں افنان کے کہنے پر ضرور آؤں گی۔ میرے علاوہ میری دوستیں، خاص طور پر مشی بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ کافی دیر یہ محفل سجی رہی اور پھر رات کے 3 بجے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو نکل پڑے۔ میں نے دوبارہ عبایا اور نقاب کر لیا۔ میرے بوائے فرینڈ افنان نے مجھے اپنی
गाड़ी में मेरे घर से थोड़ा पीछे ड्रॉप किया था। मैं गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चल पड़ी। अफनान भी गाड़ी मोड़कर वहाँ से चला गया था। जब मैं थोड़ा आगे गई तो अचानक एक आदमी मेरे सामने आ गया। उसे देखकर मैं डर गई क्योंकि वो अचानक आया था और इंतहाई गुस्से में मुझे देख रहा था। उसकी आंखों से मुझे खौफ आ रहा था। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी जिस वजह से मैं उसका चेहरा बआसानी देख सकती थी। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो भयानक सी आवाज में बोला और वहाँ से चला। जबकि मैं दंग रह गई कि वो क्या कह कर गया था। वो कौन था? मैं तो उसे नहीं जानती थी। मैं हक्का बक्का रह गई और घर के अंदर चाबी से ताला खोलकर दाखिल हुई। अम्मी अभी तक सो रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए, हाथ मुंह धोकर अम्मी के साथ बेड पर लेट गई। मेरे जहन में हनूज वही आदमी बार बार आ रहा था। वो कौन था मैं नहीं जानती थी। शायद हमारे मोहल्ले का होगा, लेकिन आज से पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा था। फिर वो मुझे कैसे जानता था? क्या उसने मेरा पीछा किया था और वो जानता था कि मैं क्लब में गई थी? शायद इसीलिए वो कह रहा था कि मैंने अच्छा नहीं किया। इसके अलावा मैंने सोचा कि अगर उसने मेरी अम्मी को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं फौरन मुकर जाऊंगी। मुझे यकीन था अम्मी उस पर नहीं बल्कि मुझ पर यकीन करेंगी। यही सब सोचते हुए मैं सो चुकी थी और मुझे खबर भी ना हुई। थकावट भी काफी हो चुकी थी। एक हफ्ते तक जब उस आदमी का कहीं नामो निशान ना रहा तो मैं मुतमईन हो गई कि वो नहीं आएगा और ये ख्याल भी आया कि शायद उसने गलत फहमी में मुझसे वो बात करती होगी। ये सब उसे किसी और लड़की को कहना होगा। वैसे भी मैं तो नकाब में थी, सो उसे पहचानने में गलती हो गई होगी। ये सब सोचकर मैं मुतमईन हो गई कि ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। रात को मैं अफनान से बात कर रही थी। मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से था और यहीं मैं पली बड़ी थी। अब्बू का इंतकाल हो गया था और उनके इंतकाल के बाद से अम्मी ने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। वैसे तो अब्बू की पेंशन हर महीने आती थी, लेकिन अम्मी सिलाई करना इसलिए शुरू हो गई थी ताकि वो मेरे लिए जहेज बना सके और अच्छी जगह मेरी शादी कर सके। जब अब्बू की वफात हुई तब मैं 15 साल की थी। उनकी वफात को 5 साल गुजर चुके थे। अब मैं 20 साल की हो गई थी। 14 जमातें मैंने पढ़ ली थी। यूनिवर्सिटी में ही मेरी दोस्ती अफनान से हो गई थी। दरअसल अफनान बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ माइल हो गई। मैं यूनिवर्सिटी आने से पहले ऐसी लड़की हरगिज नहीं थी और ना मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती की थी, मगर जब से मेरी दोस्ती मिशी से हुई थी मैं उसके ग्रुप में शामिल हो गई थी। फिर यूं ही मेरी दोस्ती उसके तवस्सुत से अफनान से हो गई। मिशी का अपना भी एक बॉयफ्रेंड था, सो उसने मेरी भी दोस्ती अफनान से करवा दी। और जब मुझे मालूम हुआ कि अफनान बहुत अमीर है तो फिर मेरे दिल में वाकई उससे दोस्ती की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। जब वो मुझे महंगे महंगे तोहफे देता था तो मेरा दिल बड़ा खुश होता था। सच कहूँ तो एक तरह से मैं लालच में आ गई थी, बस इसलिए उससे दोस्ती की थी। और अब इतने अरसे बाद उसने कुछ दिन पहले मुझे क्लब में बुलाया था और मैं चली गई थी। पहले तो मैं डर रही थी, लेकिन अब मेरा डर निकल गया था। अब मैं सोच रही थी कि अगली मर्तबा भी मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अम्मी सो गई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैं छत पर आ गई। छत तीसरी मंजिल पर थी। वहाँ मैं चहलकदमी करते हुए कॉल पर अफनान से बातें कर रही थी। उस वक्त हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था और वहशतनाक माहौल बना हुआ था। मेरे घर के आसपास दरख्त थे और छत के सामने भी एक बड़ा घना दरख्त था। बात करते करते अचानक मैं कांप उठी क्योंकि सामने दरख्त पर कोई वजूद उल्टा लटका हुआ नजर आया। दरख्त का मेरे घर से फासला तकरीबन 10 से 15 फीट था। मैं दहल कर रह गई। जब दोबारा गौर से देखा तो वहाँ कुछ नजर नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, इसलिए मैं अफनान से बात करने में मशगूल हो गई। अफनान मुझसे मिलने की बात कर रहा था, इसलिए मैं उससे मिलने का वक्त और जगह डिसाइड कर रही थी। उससे बात करने के बाद मैं नीचे आ गई और अम्मी के साथ लेट गई। नींद तो मुझे आ गई थी, मगर एक वहशत अंगेज ख्वाब ने मुझे खौफजदा कर दिया। मैंने ख्वाब में देखा वही आदमी जो उस दिन मुझे कह रहा था कि अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो आज मेरे ख्वाब में भी आ गया था। वो अजीब तरह से मुझे देखते हुए गुर्रा रहा था। उसका चेहरा अजीब सा था और उस पर निहायत हौलनाकी थी। आज भी वो मुझसे कह रहा था कि तुम ठीक नहीं कर रही। यही बात कहते हुए वो अचानक मेरे बहुत नजदीक आ गया और मेरा गला दबाने लगा। मेरी आंखें उबल पड़ी और मैं मरने के करीब आ गई। मेरी चीख निकल गई। मैं एकदम उठ गई। शुक्र था कि ये ख्वाब था, वरना मैं खौफ से ही मर जाती। मैं गहरे गहरे सांस लेकर खुद को पुरसकून करने लगी। मैंने अम्मी को देखा तो वो सोई हुई नजर आई। वैसे भी उनकी नींद इतनी गहरी होती थी कि किसी की चीख से तो क्या गोली चलने की आवाज से नहीं उठती थी। उस वक्त तहज्जुद का वक्त हो रहा था। दूर कहीं से अजानों की आवाज आ रही थी। मुझे नींद काफी आ रही थी, इसलिए मैं सोने के लिए लेटी। लेकिन हैरानी हुई जब देखा कि अम्मी खुद बखुद उठकर एकदम से बेड से नीचे उतर गई और कमरे से बाहर जाने लगी। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया और वहाँ से चली गई। मैं हैरान हुई कि अम्मी ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। खैर मैं उठकर उनके पीछे चली गई और उनको आवाज दी, मगर उन्होंने ना कोई जवाब दिया
नह एक पल के लिए रुकी। वो दूसरे कमरे में जाकर वॉशरूम गई और वहाँ से वुजू करके बाहर आई और नमाज पढ़ने लगी। उन्होंने कमरे की लाइट भी नहीं जलाई थी। मैं हैरान परेशान खड़ी ये सब देख रही थी कि अम्मी मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। और ऊपर से हुआ ये कि नमाज पढ़ने के बाद वो वहीं जाए नमाज पर लेटकर सो गई। उन्होंने ना मेरी तरफ देखा ना कोई जवाब दिया। ये बात मेरे लिए वाकई परेशानी की थी। अगली सुबह उठकर मैंने जब अम्मी से पूछा कि आप रात को तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ने उठी थी लेकिन आपने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, ना मेरी कोई बात सुनी। ये बात सुनकर अम्मी मुझे हैरत से देखने लगी। बोली कि मीरब मैं तो सारी रात सोई रही, मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, तूने कोई ख्वाब देखा होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठटक गई। मैंने उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा मगर वो यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। मैं ये तो नहीं मान सकती थी कि मैंने रात को वो सब ख्वाब में देखा था। अलबत्ता मैं ये जरूर सोच रही थी कि शायद अम्मी नींद में उठकर नमाज पढ़ रही होंगी। वैसे भी वो बहुत नेक थी, 5 वक्त की नमाजें और नफली नमाजें भी पढ़ती थी, जबकि मैं कोई नमाज नहीं पढ़ती थी। मुझे दीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं नहीं जानती थी मेरे ऊपर क्या कयामत टूटने वाली थी। इसी तरह एक दिन अचानक ही अम्मी की तबीयत बिगड़ गई और वो अस्पताल में एडमिट हो गई। मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे वाकई अम्मी से बड़ा प्यार था। अस्पताल में रात रहने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मजबूरन मैं घर आ गई। मैंने रात को वापस आकर अफनान को फोन किया और अपनी अम्मी के बारे में बताया। उसने मुझे हौसला दिया तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई और मैंने फोन बंद कर दिया। अब मुझे नींद आ रही थी। मैं अभी नींद की वादियों में ही उतरी थी कि अचानक मुझे खटपट की आवाज आई। मेरी नींद चूंकि कच्ची थी इसलिए मैं उठकर बैठ गई, मगर थकावट की वजह से मैं अभी भी नींद के जेर असर थी। मैंने देखा कमरे के अंदर कोई दाखिल हो रहा था। मैं डर गई कि शायद कोई चोर है, लेकिन हैरत अब हुई जब मैंने नाइट बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा देखा। बेसाख्ता मेरे मुंह से अफनान निकल आया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने अफनान खड़ा था। वो धीरे से चलता हुआ आया और मेरे सामने बेड पर बैठ गया। एसी चलने के बावजूद जाने क्यों मुझे गर्मी का एहसास हुआ। मैं हैरान थी और कुछ नींद में भी थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सारा दिन अस्पताल में गुजरा इसलिए थकावट हो गई। मैंने अफनान से पूछा तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे घर आ गए? तुम तो कराची गए हुए थे ना? मैंने ये पूछा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला तुम परेशानी में थी, घर पर तन्हा थी, तुम्हें कैसे अकेला छोड़ देता। बस यही सोचकर वहाँ से तुम्हारे पास भागा चला आया। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी कि उसे मेरा कितना ख्याल है। उसने मुझे बेड पर लिटाया, खुद भी मेरे साथ लेट गया। वो मुझे ही देख रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। एकदम मैं नींद की वादियों में उतर गई और मुझे कोई होश न रही। बस नींद में जाते हुए मैंने सिर्फ इतना महसूस किया था कि अफनान ने मेरी कमर के गिर्द बाजू हायल किए थे। किसी का सहारा पाते ही मैं पुरसकून हो गई और नींद की आगोश में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, जब खिड़की से सूरज की रोशनी आकर सीधा मेरे चेहरे पर पड़ने लगी, मैं एकदम उठ बैठी। रात वाला मंजर याद किया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सो मैंने फौरन अपने पहलू में देखा जहाँ रात में अफनान लेटा था, मगर मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई क्योंकि अफनान बेड पर मौजूद नहीं था। मैंने वॉशरूम में देखा लेकिन वो वहाँ नहीं था। मैंने उसे आवाजें देते हुए पूरा घर छान मारा कि वो इतनी जल्दी घर कैसे चला गया। अभी तो सिर्फ 8 बज रहे थे। मुझे बहुत परेशानी हुई कि वो कहाँ चला गया है। मुझे जगा तो देता। मैं सीढ़ियाँ उतरती घर के दरवाजे की तरफ आई तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि दरवाजा अंदर से अच्छी तरह लॉक्ड था। 3 कुंडियां अंदर से लगी हुई थी। मैं दंग रह गई। सोचने लगी कि ये कुंडियां तो मैंने ही रात को लगाई थी। फिर अफनान घर के अंदर कैसे आ गया था और वो घर से बाहर कैसे जा सकता था जब कुंडियां अंदर से खोली ही नहीं गई थी। बाहर जाने के लिए यकीनन इन भारी कुंडियों को खोलना पड़ना था। मैंने परेशानी से कुछ याद आने पर अफनान को फोन मिलाया कि मैं उससे पूछती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। वो रात को मेरे दरवाजा खोले बिना घर में कैसे आया और फिर गायब कैसे हो गया। जब अफनान ने कॉल रिसीव कर ली तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ चले गए हो अफनान? उसने कहा मैंने बताया तो था कराची में हूँ, अभी भी वही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं समझी वो मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उससे कहा मजाक मत करो, ये बताओ कल रात मेरे घर कैसे आए थे और मेरे उठने से पहले चले भी गए। मैंने पूछा तो वो हंसने लगा। बोला मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मजाक कर रही हो। मैं कराची से तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? हालांकि मुझे कराची से लाहौर वापस आने में 1 दिन लगेगा। उसने कहा तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उसने मुझे वीडियो कॉल की तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि वो उस वक्त क्लिफ्टन के बीच में वाक़ एक होटल में था, यानी वो कराची में ही था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम वाकई रात को मेरे घर नहीं आए थे? अगर वो तुम नहीं थे तो वो कौन था जो रात को आया था? मैं डरते हुए बोली। वो कहने लगा यकीनन तुमने रात को ख्वाब देखा होगा। इसके बाद अफनान ने फोन बंद कर दिया। वो बोला कि अभी उसे किसी मीटिंग में जाना है, जबकि मैं शशदर खड़ी दरवाजे को देख रही थी। सोच रही थी कि रात में अगर अफनान नहीं आया तो वो कौन था जिसने मेरा हाथ भी पकड़ा था और मेरे साथ लेट भी गया था। जाने क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रात को मैंने वो सब ख्वाब में देखा था, मगर फिर मजबूरन मुझे यकीन करना पड़ा कि वो सब ख्वाब था। वैसे
वैसे भी अफनान तो कभी मेरे घर आया ही नहीं था। जब वो पहले कभी नहीं आया था तो रात में क्यों आता। एक हफ्ते के बाद अम्मी की डेथ हो गई। वो मुझे इस दुनिया में छोड़ कर जा चुकी थी। मैं अकेली रह गई। ये सदमा बहुत गहरा था। कुछ दिन रिश्तेदार और दोस्तों वगैरह ने दिल बहलाया तो मैं काफी हद तक सब्र के दायरे में आ गई। अब मैं अक्सर जब कभी घर में होती तो अम्मी शिद्दत से याद आती थी। कभी कभार दिल बहलाने की खातिर मैं दोस्तों के घर चली जाती थी। पहले तो अम्मी मुझे रात के वक्त या बिला जरूरत घर से बाहर जाने पर टोक देती थी, लेकिन जब से अम्मी इस दुनिया से गई थी और मेरे सर पर किसी का सहारा नहीं रहा था, मैं कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी थी। कई कई देर सहेलियों के साथ घूमती रहती, कभी अफनान के साथ रेस्टोरेंट चली जाती। हर महीने अब्बू की पेंशन भी आती थी। अब चूंकि अम्मी नहीं थी इसलिए सब कुछ मैंने ही करना था। मैंने अफनान से कहा था कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन वो इनकार कर गया। बोला कि जब तक मैं वेल सेटल्ड नहीं हो जाता घर वाले मेरी शादी नहीं करेंगे। उसने मुझे समझाया तो मैं खामोश हो गई। अलबत्ता अभी भी हम बगैर निकाह और बगैर किसी रिश्ते के आपस में मिलते थे। आज भी मैं अफनान से मिलकर वापस आ रही थी। रिक्शा नहीं मिल रहा था इसलिए मैं चौक तक पैदल चलकर आ रही थी। अचानक रास्ते में सुनसान इलाके से गुजरते हुए सामने वही आदमी आ गया जो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। अभी भी वो अंगारा बरसाती आंखों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, तुम्हारी माँ मर गई है लेकिन अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। संभल जाओ और दीन पर अमल करो वरना पछताओगी। ये कहकर वो दरख्तों के बीच कहीं चला गया। मैं तो हैरान सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई कि आखिर ये कौन था और मेरे बारे में कैसे जानता था। इसे कैसे पता चला कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था और इसे कैसे पता कि मैं दीन से दूर थी। मैं परेशानी में यही सब सोचते हुए घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे घर में भी तन्हा रहते हुए वहशत सी होने लगी थी। घर में कभी कभार ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है, मगर मैं खुद को तसल्ली देती कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मेरा वहम है। आज रात भी मैं अफनान से बात करते हुए बेड पर लेटी हुई थी जब मुझे किसी की आवाज आने लगी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये आवाज मेरे ही घर से साथ वाले कमरे से आ रही है। उस आवाज पर गौर किया तो यूँ महसूस हुआ जैसे कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ये आवाज साथ वाले घर से आ रही है, क्योंकि मेरे घर में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। किसी का कुरान मजीद की तिलावत करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन न जाने क्यों ये तिलावत सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जब आवाज तेज हो गई तो मुझे तशवीश होने लगी। मेरा दिल डर रहा था, इसलिए मैं बेड से उतरी और दूसरे कमरे में जाने लगी ताकि देख सकूं कि वो आवाजें क्या वाकई साथ वाले कमरे से आ रही हैं या किसी और घर से। मैं उठकर दूसरे कमरे में आई और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलना चाहा, लेकिन मेरे होश उड़ गए क्योंकि दरवाजा लॉक हो चुका था। दरवाजा उसी सूरत लॉक्ड हो सकता था जब उसे अंदर से लॉक किया गया हो। मैं कांपने लगी कि अंदर कोई मौजूद था, क्योंकि तिलावत की आवाज तो अंदर से ही आ रही थी। मैंने तो दरवाजा बाहर से लॉक नहीं किया था। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन अंदर से मुसलसल तिलावत की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की लेकिन दरवाजा ना खुला तो मैं कमरे से जाकर चाबी ले आई। मेरा फोन बेड पर ही पड़ा रह गया। चाबी लाकर मैंने दरवाजे के लॉक में फंसाई मगर फिर भी लॉक ना खुला, हालांकि ये चाबी इसी दरवाजे की थी। अब अंदर से तिलावत करने की आवाज आना बंद हो गई थी। अब जैसे ही मैंने चाबी लॉक में डालकर घुमाई दरवाजा खुल गया। मैंने कांपते हुए अंदर झांका लेकिन अंदर तो कोई नजर नहीं आया। पूरा कमरा खाली था। मैंने वॉशरूम में भी देखा, फर्नीचर भी छान मारा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर वो कौन था जो कमरे में तिलावत कर रहा था? डर के मारे मैं रोने लगी और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने अफनान को फोन मिलाया, उसे अपने डर के बारे में बताया और हर चीज उसके गोश गुजार कर दी। तो वो हंसने लगा। बोला, लगता है तुम अपनी अम्मी की वफात के गम में हो, इसीलिए उल्टी सीधी चीजें महसूस हो रही हैं तुम्हें। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। अफनान की बात सुनकर मुझे सख्त मायूसी हुई। वो तो मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे उस रात नींद आई और फिर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हो गया। कभी मुझे अपने कमरे में कोई चलता फिरता महसूस होता, कभी छत पर किसी के गुर्राने की आवाज आती, कभी सामने दरख्त पर कोई उल्टा लटका हुआ नजर आता, कभी शीशों पर खून लगा होता। मैं इस घर में अकेली रहकर बहुत वहशत में आ चुकी थी। जब भी मैं अफनान को अपने साथ होने वाले वाकयात का बताती तो वो यकीन ना करता, उल्टा मुझे समझाता कि ये तुम्हारा वहम है, अम्मी की वफात की वजह से तुम सदमे में हो। अब तो मैंने उसे बताना ही छोड़ दिया था। अलबत्ता मुझे यकीन आ गया था कि इस घर में आसेब है। यही सब सोचते हुए मैं बीमार पड़ गई। मुझे 104 बुखार था। मजबूरन डॉक्टर से मेडिसिन ले आई। उन दिनों अफनान भी जिद कर रहा था कि मैं उससे अकेले में मिलूं, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं था उससे मिलने का, क्योंकि मेरे साथ जो वाकयात हो रहे थे उन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया था। चूंकि दवा में नींद की गोली थी इसलिए मैं जल्दी सो गई, लेकिन
آدھی رات کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے اوپر آ کر جھکا ہے۔ میں نے نیند میں بمشکل آنکھیں کھولی تو ہوش اڑ گیا، کیونکہ میرے اوپر کوئی عجیب سی مخلوق جھکی ہوئی تھی جس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی زبان نکالی اور میری پیشانی پر پھیرنے لگا۔ ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ مجھے اچانک رات والا واقعہ یاد آیا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گرمی میں بھی میں کانپنے لگی۔ میں نے خود کو جھوٹی تسلی دی کہ جو رات ہوا وہ میرا خواب تھا، لیکن جب خود کو آئینے میں دیکھا تو ہوش اڑ گیا، کیونکہ میرے ماتھے پر سرخ نشان تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آیا جب اس مخلوق نے اپنی زبان سے میری پیشانی کو چاٹا تھا۔ اب تو شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ سب میرا وہم ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے۔ چاہ کر بھی میں افنان کو اس بارے میں نہ بتا پائی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ مجھ پر یقین نہیں کرے گا بلکہ الٹا میرا مذاق اڑائے گا۔ مجھے ہر وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ آج افنان نے مجھ سے ملنے کی بات کی تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر اس کے اصرار پر میں نے اس سے کہا کہ کل مل لیں گے۔ یوں اگلے دن میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگی۔ میں سوچ رہی تھی افنان سے کہوں گی کہ جلد ہی مجھ سے شادی کر لے، کیونکہ میں اب تنہا نہیں رہ سکتی۔ تنہائی سے مجھے وحشت سی ہوتی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی یہ سب سوچ رہی تھی جب میں نے دیکھا آئینے میں اسی آصف کا عکس نمودار ہوا۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگی اور گھر کو تالا لگا لیا۔ اب میرا رخ اسی ریسٹورینٹ کی جانب تھا جہاں افنان نے مجھے بلایا تھا۔ میں دل میں رو رہی تھی کہ یہ منحوس آصف پتہ نہیں کہاں سے میرے پیچھے پڑ گیا۔ اچھی بھلی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اگر امی ہوتی تو میں اتنی تنہا نہ ہوتی اور نہ مجھے اس منحوس آصف سے ڈر لگتا۔ امی کو یاد کرتے ہوئے میں رو پڑی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں ریسٹورینٹ پہنچ گئی۔ وہاں افنان پہلے سے موجود تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو بالکل بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ میرا مذاق اڑائے، مگر جانے کیوں جب اس نے مجھ سے میری طبیعت پوچھی اور میرے ماتھے پر اس سرخ نشان کے بارے میں پوچھا تو میں بے ساختہ رونے لگی۔ افنان نے خیریت پوچھا تو میں نے اسے اپنی سارا حال دل سنا دیا۔ مجھے اب لگ رہا تھا وہ میرا مذاق اڑائے گا، لیکن سخت حیرت ہوئی جب وہ بولا کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین ہے، اب تمہیں میں ہرگز اکیلا اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ایسا کرو، میرے اس فلیٹ میں رہو جو ابو نے میری سالگرہ پر مجھے گفٹ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اسے مجھ پر یقین تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، مگر وہ ٹالنے لگا کہ ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے دکھ تو ہوا، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ افنان مجھے اپنے فلیٹ میں رکھنے کی فیور کر رہا تھا۔ کم از کم وہاں اس سے میری ملاقات تو ہو جاتی، اور دوسرا اس کے فلیٹ میں رہ کر اس جن زادے سے بھی چھٹکارا مل جاتا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ آج رات مجھے لینے آئے گا، سو میں اپنا سامان پیک کر لوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی ابھی مجھ پر کتنی آفات ٹوٹنی تھی۔ جب میں گھر آئی تو میرا ڈر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے صرف اور صرف خوشی تھی۔ میں نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور ایک نظر اس گھر پر ڈالی اور اسے تالا لگا دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اس گھر میں تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک اس منحوس جن زادے کا سایہ واپس نہیں چلا جاتا۔ افنان مجھے لینے آ چکا تھا، اس لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم سیدھا اس کے فلیٹ میں گئے، جو میرے گھر سے تقریباً 1 گھنٹہ دور تھا۔ فلیٹ میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ رات ہو رہی تھی۔ اس عمارت کی 10 منزلیں تھیں اور 5ویں منزل پر افنان کا فلیٹ تھا، جس کے 3 کمرے تھے۔ آج رات وہ فلیٹ میں ہی رک گیا تھا۔ میں جس بیڈ روم میں سوئی تھی اس کے ساتھ والے بیڈ روم میں افنان سویا تھا۔ آہستہ آہستہ افنان کے دل میں اپنی محبت دیکھ کر میں اس پر مزید فدا ہو گئی، اور پھر ایک رات افنان میرے قریب آنے لگا۔ چونکہ اس نے مجھے سہارا دیا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ ہم دونوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا تھا۔ اس فلیٹ میں مجھے رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ میں خوش تھی، مگر میری پریشانی میں اضافہ تب ہوا جب افنان کی غیر موجودگی میں میرے کمرے میں موجود چیزیں خود بخود گرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یوں لگ رہا تھا کوئی نادیدہ قوت اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ جاننے میں مجھے دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادہ ہے جس نے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ اب بک ریک میں سے کتابیں اڑتی ہوئی آئیں، میرے اوپر گرنے لگی۔ خوف سے میری جان جانے لگی۔ میں بھاگ کر کمرے سے نکلی، دوسرے کمرے میں آ کر کنڈی لگا لی تاکہ وہ جن زادہ میرے پیچھے یہاں نہ آ جائے۔ میرا فون بھی اسی کمرے میں رہ گیا تھا، اس لیے افنان کو بلا نہیں سکتی تھی۔ میں ڈر کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر اس کمرے میں بھی جیسے طوفان آنے لگا۔ ایک دم مٹی اور گرد میری آنکھوں میں جانے لگی۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔
तो यकायक सन्नाटा छा गया। वो तूफान भी थम गया, चीजें गिरने का शोर भी खत्म हो गया। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद से पूरे फ्लैट में एक पुरसकून माहौल छा गया। मैंने अफनान को फोन करके बुलाने का इरादा तर्क किया और फ्लैट की सफाई करने लगी। जाने क्यों आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद से मेरा खौफ खत्म हो गया था। मैं सोच रही थी कि अफनान ख्वामखा परेशान हो जाएगा, इसलिए उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। उस फ्लैट में आए मुझे 3 महीने गुजर गए। इस दौरान मेरे साथ अजीबो गरीब वाकयात होते रहे। कभी वो जिन ज्यादा अच्छे रूप में मेरे सामने आता तो कभी इंतहाई भयानक रूप में। मैं नहीं जानती थी आखिर वो चाहता क्या है। अब मैं गौर कर रही थी, अफनान मुझसे दूर दूर रहने लगा था। वो यहाँ कम आता था और एक दिन मुझ पर जो इंकशाफ हुआ उसने मेरी रूह हिला दी। अफनान शादी कर रहा था अपने घर वालों की पसंद से। मैंने रोते हुए उससे कहा, अफनान तुम शादी मत करो, घर वालों को मेरे बारे में बताओ, मुझसे शादी करो। लेकिन अफनान ये सब करने को तैयार नहीं था। वो बहाने बना रहा था। यूं उसने अपने घर वालों की पसंद से शादी कर ली और मैं उस फ्लैट में तन्हा रह गई। मेरा दिल कर रहा था खुद को खत्म कर लूं, मार डालूं। मेरे पास मेरा एक ही तो सहारा था अफनान, और वो भी मुझसे दूर हो गया था। मैंने अफनान को अपनी मोहब्बत याद दिलाई तो उसने मुझे अपने फ्लैट से निकाल दिया। बोला, तुम एक बदकिरदार लड़की हो, तुमने मुझसे दोस्ती रखी, मुझसे मिलती रही, बिना रिश्ते के मुझसे ताल्लुक बनाया। मैं जानता हूँ तुम जैसी घटिया बदकिरदार लड़की के और भी लड़कों से ताल्लुकात होंगे। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारी कर रहा था क्योंकि तुम इसी लायक हो। मैं पागल नहीं हूँ कि तुम जैसी बेगैरत लड़की को अपनी बीवी बनाऊंगा। अफनान की बातें हथौड़े की तरह मेरे दिल पर लगी। मैं उसके पाँव पड़ गई। उससे कहा कि ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसे मुझ पर तरस नहीं आया। उसने मुझे धक्का दिया, वहाँ से चला गया। अब मेरी आंखें खुल गई थी। इस दौरान मुझे अफनान से सख्त नफरत हो गई थी। अब मुझे पता चल गया था कि मैंने अफनान पर यकीन करके अपना सब कुछ गंवा दिया था। मैं रोती हुई उजड़ी हुई हालत में अपने घर वापस आ गई, उसी घर में जिसमें खौफजदा होकर मैं गई थी। यहाँ वापस आकर मैं फूट फूट कर रोई थी। मुझे अम्मी की शिद्दत से याद आई थी, जो हमेशा मुझे लड़कों से दूर रहने की तलकीन करती थी। समझाती थी कि बेटा कभी लड़कों से दोस्ती मत करना, मगर मैंने उनकी बात पर अमल नहीं किया और अफनान से दोस्ती कर ली। गलती मेरी ही थी। अगर मैं लालच ना करते हुए उस जैसे घटिया लड़के से दोस्ती ना करती तो आज मेरी इज्जत भी महफूज होती और मैं यूं रो भी ना रही होती। इसी अजियत ने मुझे बुखार चढ़ गया, मगर मैं उस वक्त इस हालत में बिल्कुल नहीं थी कि डॉक्टर के पास जाती। मैं चाहती थी कि ऐसी अजियतनाक जिंदगी जीने से बेहतर तो यही है कि मैं मर जाऊं, इसलिए मैं खुद को अजियत दे रही थी। उस वक्त पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर को साफ करती या अपने खाने पीने का बंदोबस्त करती। भूख से मेरा बुरा हाल था। अजियत में ही मैं सो गई, मगर जब आंख खुली तो देखा पूरा घर चमक रहा था, जैसे किसी ने बहुत मेहनत से साफ किया हो। इसके अलावा किचन से खाने की खुशबू भी आ रही थी। मैं जब किचन में गई तो सालन और रोटी बनी हुई थी। मैं दंग रह गई कि ये सब किसने किया, क्योंकि मेरे अलावा तो घर पर कोई नहीं था और मैं सो रही थी। फिर मेरे जहन में अचानक ख्याल आया कि ये जरूर उस जिनजादे ने किया होगा, लेकिन मैं हैरान थी कि वो मेरी मदद क्यों कर रहा था। खैर भूख इतनी थी कि मैंने वो खाना खा लिया। बेड पर मुझे मेडिसिन पड़ी हुई नजर आई तो मैंने उसे भी खा लिया। वो जिनजादा अब रोज मेरी कोई ना कोई मदद कर देता। मैं अभी तक परेशान थी कि वो ऐसा क्यों करता था। एक रात मैं सो रही थी जब वो मेरे कमरे में आया और मेरे गिर्द अपने बाजू हायल किए। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। मेरी नींद उड़ गई। मैं उससे डर गई। डर कर मैं दूसरे कमरे में भाग गई। मुझे उस जिनजादे के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। जिस तरह वो मेरे करीब आने की कोशिश करता था, मुझे उससे डर लगता था कि शायद वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। मैं एक बार फिर रोने लगी। अब अचानक ही मेरे कानों में आयतल कुर्सी की आवाज गूंजने लगी। यूं लग रहा था साथ वाले कमरे में कोई आयतल कुर्सी की तिलावत कर रहा है। मैं समझी ये वही जिनजादा है। फिर मुझे उस जिनजादे से जैसे नफरत महसूस हुई, जो मेरे साथ गलत करने की कोशिश भी करता था, फिर अच्छे काम भी करता था। सारी रात मैं सो नहीं सकी। एक तो डर भी लग रहा था, दूसरी बात ये थी कि वो जिनजादा साथ वाले कमरे में कुरान मजीद की तिलावत भी करता रहा। मैंने बेसाख्ता कुरान मजीद अपनी अलमारी में से उठाया और उसे पढ़ने लगी। आज पहली मर्तबा मैं इतने दिल से कुरान पढ़ रही थी और उसे पढ़कर मुझे इतना सुकून मिला कि मैं गहरी नींद सो गई। उस दिन के बाद मैं रोज कुरान मजीद पढ़ती और अब इस घर में उस जिनजादे का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे मालूम था ये सब अल्लाह से दुआ का नतीजा है, इसलिए अब मैं नमाजें भी पढ़ने लगी। मुझे यकीन था वो डर कर भाग गया था, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है। एक दिन मुझे अपनी दोस्त के जरिए खबर मिली कि अफनान का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और अब वो चलने फिरने से कासिर है। उसकी माजूरी को देखकर उसकी बीवी उससे खुला का मुतालिबा कर रही है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अफनान जैसे घटिया शख्स के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। मुझे अफनान से बिल्कुल भी हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं
اب उससे सख्त नफरत करती थी। उस रात मुझे बहुत पुरसकून और खुशी की नींद आई कि मेरे मुजरिम को उसके किए की सजा मिल गई थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके सो गई। अभी मुझे सोए हुए बमुश्किल 1 घंटा ही हुआ था कि किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई थी। सिर्फ एक चीख ही नहीं, मुसलसल मुझे कई चीखें सुनाई थी। मैं डर कर उठ गई। यह आवाज साथ वाले कमरे से आ रही थी। दंग रह गई और फिर हिम्मत करके उठी। चुपके से दरवाजे से अंदर झांका तो होश उड़ गया। कमरे में 2 जिनजाद खड़े थे, एक खड़ा था और एक बैठा हुआ था। खड़े वाले जिनजादे ने अपने हाथ की मुट्ठी से कोई सफूफ निकाला और बैठे हुए जिनजादे के ऊपर छिड़का तो वो तड़पते हुए चीखें मारने लगा और बहुत जल्द उसका वजूद हवा में तहलील हो गया। ये मंजर देखकर मैं डर गई और अपने कमरे में भागी। कुरान मजीद की तिलावत ऊंची आवाज में करने लगी ताकि वो जिनजादा भाग जाए। मुझे लग रहा था कि अगर वो जिनजादा मेरे कमरे में पहुंच गया तो मुझे मार डालेगा, लेकिन होश मेरे तब उड़े जब वो दरवाजे के आर पार होकर कमरे में आ गया। मैं डर रही थी, उसके आगे हाथ जोड़ते हुए जिंदगी की भीख मांग रही थी कि मुझे मत मारो। मेरी फरियाद सुनकर वो मुस्कुरा दिया। बोला, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने में मदद की है, मैं किस तरह तुम्हें मार सकता हूँ? तुम मुझे अपना दोस्त और हमदर्द समझो। उसके नरम लहजे पर मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मुझे कुछ बताना शुरू किया। वो बोला, मेरा नाम हारिस है और मेरा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है, क्योंकि मैं भी एक जिनजादा हूँ। मुझे शुरू से इंसानों से बहुत प्यार था। मैं अक्सर इंसानों की दुनिया में घूमता रहता था। मैंने अपना ठिकाना तुम्हारे घर के सामने वाले दरख्त पर बनाया हुआ था। मैं वहाँ रहता था, अल्लाह की इबादत करता था। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने उठता था तो देखता था तुम्हारी अम्मी भी नमाज पढ़ रही है। मुझे ये बात बहुत पसंद आती थी, लेकिन फिर दुख होता था कि तुम क्यों नमाज और तहज्जुद नहीं पढ़ती। उस वक्त तुम 15 साल की थी जब मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई थी। उस वक्त तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से चले गए थे और मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हें हौसला दूं, तुम्हारे आंसू साफ करूं, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। जब मुझे लगा कि मेरा तुमसे प्यार शिद्दत पकड़ रहा है तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि ये ठीक बात नहीं थी। हम मुसलमान हैं, हमारे दीन में जिन्नात और इंसान में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं वापस अपनी दुनिया में चला गया, क्योंकि मैं अपनी हदूद नहीं तोड़ना चाहता था। कई साल बाद मेरा दिल किया कि तुमसे मिलने को, तो मैं वापस आ गया। लेकिन मैंने देखा कि तुम पहले जैसी मासूम नहीं रही, बल्कि तुमने किसी लड़के से दोस्ती कर ली है और तुम उसके साथ जाने कहाँ कहाँ जाती हो। इसलिए उस रात में रूप बदल कर तुम्हारे पास आया ताकि तुम्हें खबरदार कर दूं। मैं तुम्हें अपनी असलियत नहीं बता सकता था, इसलिए तुम्हें खबरदार करके वहाँ से चला गया। लेकिन तुमने मेरी कोई बात ना सुनी। कई दफा इशारों से मैंने तुम्हें नमाज कुरान की तरफ राग़िब करना चाहा, मगर तुम पर कोई असर ना हुआ। मैं बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता था कि शायद तुम्हारा दिल नरम पड़े और तुम कुरान और अल्लाह को याद करो, क्योंकि तुम्हारे दीन से दूर होने की वजह से उस काफिर जिनजादे को तुम पर काबिज होने का मौका मिल गया। वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था, तुम्हें परेशान करता था ताकि तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाए और तुम्हारा गलत इस्तेमाल करे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझसे ताकतवर था। हम दोनों के दरमियान एक जंग छिड़ गई थी। मैं तुम्हें उससे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन वो फिर तुम्हारे करीब आने लगा, तुम्हें खौफजदा करता। उसे भगाने की खातिर मैं तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत करता, जिसे सुनकर वो वक्ती तौर पर भाग जाता था। मगर एक दिन उसने मुझे अपनी ताकत से कैद कर लिया और मैं तुम्हें आगे के हालात के बारे में खबरदार ना कर सका और तुम उस मक्कार इंसान अफनान के पास चली और उस जिनजादे ने तुम्हारे वजूद में दाखिल होकर तुमसे गलत काम करवाया और तुम्हें अफनान के आगे बेबस कर दिया। मैंने उस कैद में रहकर दिन रात अल्लाह से दुआ मांगी और उसने मुझे उस काफिर जिनजादे की कैद से आजाद करवा दिया। मैंने अपने कबीले के नेक बुजुर्ग से एक सफूफ तैयार करवाया और आज मैंने उस काफिर जिनजादे को उस सफूफ के जरिए मार डाला जो इंसानों को तंग करता है और उनके साथ बुरा करता है। वो अपनी बातें मुकम्मल कर चुका था, जबकि मैं हक्का बक्का रह गई। अब मुझे समझ आया था कि ये हारिस जिनजादा मेरी मदद करता था और वो बुरा जिनजादा मुझे खौफजदा करके डरा के मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करता था। मुसलमान जिनजादे हारिस ने बताया कि अगर तुम नमाज कुरान पढ़ती तो वो जिनजादा तुम्हारी जिंदगी में दाखिल ना हो पाता। तुम अल्लाह से दूर थी, इसलिए उस जिनजादे को तुम्हें तंग करने का मौका मिला। अगर तुमने अब नमाज कुरान और अल्लाह का जिक्र मुस्तकिल तौर पर करना ना शुरू किया तो मजीद बुरे जिन्नात तुम पर हमला करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने 2 और दरख्त हैं और उन पर काफिर जिन्नात का बसेरा है। अगर उन्होंने कभी तुम्हें बेपर्दा देख लिया तो वो तुम पर हावी होने की कोशिश करेंगे। उस जिनजादे ने मेरी आंखें खोल दी थी और अब मुझे अपनी गलती नजर आई थी। अगर मैं नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, अल्लाह का जिक्र करती तो उस बुरे जिनजादे से भी महफूज रहती और अफनान भी मेरा फायदा ना उठा पाता। मैं ये सोच कर रोने लगी कि मैंने हमेशा अल्लाह की नाफरमानी की थी, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा था। अफनान से मेरा
मेरा बदला लिया था और उस नेक जिनजादे को मेरी जिंदगी में भेजा था और बुरे जिनजादे से मेरी जान बचाई थी। उसी लम्हे मैंने अल्लाह से वादा किया, मैं अब सारी नमाजें हमेशा पढ़ूंगी। मेरी बात सुनकर वो हारिस जिनजादा भी खुश हुआ। बहुत जल्द उस जिनजादे ने एक अच्छे इंसान से मेरी शादी करवा दी और फिर अपनी जिंदगी में वापस लौट गया। मुझे अच्छी तरह यकीन हो चुका था कि वो जिनजादा मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए तो उसने हमेशा मेरी मदद की थी और उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि अल्लाह की हुदूद को कायम करते हुए उसने मेरे बजाय एक जिनजादी से ही शादी की थी। हारिस जिनजादे ने कभी मुझे छुआ भी नहीं था। मैं ख्वाहिश करने लगी कि काश मैं भी अल्लाह से इतनी ही मोहब्बत करने लगूं जितनी हारिस जिनजादे को थी। अब मैं रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती थी और हादी जैसे नेक लड़के से शादी करने के बाद मेरी दुनिया खूबसूरत हो गई थी। और अब मैं अल्लाह का शुक्र करती थी कि अफनान जैसे धोखेबाज इंसान से मेरी जान छूट गई। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती?